مرسیڈیز بینز دنیا کی سب سے پرانی اور شاندار کار کمپنیز میں سے ایک ہے جو تقریباً $80 بلین کے قریب کی قیمت رکھتی ہے، لیکن آج کی مہنگی اور فیمس کارز دیکھ کر اس کا شروع کا سفر لوگ اکثر یاد نہیں رکھتے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک غریب انجینئر سے جو ہارس لیس کیریج بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشکلات اور ناکامیوں کے باوجود اس نے سب کو غلط ثابت کیا اور اپنی چھوٹی سی کوشش کو دنیا کی پہلی اور سب سے بڑی پروڈکشن کار کمپنی میں بدل دیا۔ یہ سفر دکھاتا ہے کہ محنت اور ہمت سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جو کہانی ایک انسپائرنگ سکسیس سٹوری کے طور پر شروع ہوئی تھی، وہ ایک حیران کر دینے والے موڑ پر چلی گئی جب کمپنی نے نازی رجیم کے لیے ملٹری وہیکل سپلائی کر کے پروفٹ کمایا تو یہ سب ان مجبور مزدوروں کے زور سے کیا گیا جو زبردستی کام کرنے پر مجبور تھے۔ تو ریلیکس ہو جاؤ اور سنو، آج ہم بات کریں گے مرسیڈیز بینز کی کریزی کہانی اور اس شخص کی جو کارز کو زندگی میں لایا، کارل بینز۔ کارل بینز نومبر 1844 میں جرمنی کے میولبرگ شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک لوکوموٹیو ڈرائیور تھے جو مشکل سے گھر چلاتے تھے۔ جب کارل صرف 2 سال کا تھا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور گھر کے حالات اور زیادہ مشکل ہو گئے۔ کارل کا بچپن آسان نہیں تھا۔ غریبی میں زندگی گزارنے اور خالی پیٹ سونے کے باوجود ان کی ماں نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے سب کچھ کیا۔ ان کی محنت کی وجہ سے کارل اسکول جا سکے اور چھوٹی سی عمر میں اپنی بریلینس کا ثبوت دیا، خاص کر کیمسٹری اور میکینکس میں۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کا انٹرنس ایگزام پاس کیا اور یونیورسٹی آف کارلسروہ میں داخلہ لیا۔ وہاں ان کی ملاقات فرڈینینڈ ریٹن باکر سے ہوئی۔ ان کا ماننا تھا کہ اسٹیم انجنز جو اس وقت ریلویز اور بوٹس میں استعمال ہوتے تھے پرانے ہو رہے ہیں۔ تب کارل نے ہارس لیس کیریج بنانے میں انٹرسٹ لینا شروع کیا اور اپنی سائیکل پر ایکسپیریمنٹس کر کے ایک موٹرائزڈ وہیکل بنانے کا سوچا۔ تب تک کئی لوگ پہلی کار بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کارل نے دیکھا کہ اسٹیم انجنز پرانے ہو رہے ہیں اور پروفیسر ریٹن باکر کی گائیڈنس سے سمجھا کہ ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے۔ لوگ اس کے ویژن کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اس نے ہمیشہ یقین رکھا کہ یہ پاسبل ہے۔ 19 ایئرز کی عمر میں گریجویٹ ہونے کے بعد کارل نے 7 ایئرز تک الگ الگ انجینئرنگ جابز کی اور جو کچھ سیکھا اس کا استعمال 1871 میں اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے کیا۔ اس نے ایک میکینک آگسٹ ریٹر کے ساتھ پارٹنرشپ میں مانہائم میں ورکشاپ بنائی۔ ساتھ ہی کارل اپنے موٹرائزڈ کیریج کے پروجیکٹ پر کام کرتا رہا، لیکن ریٹر کے ان ریلائبل ہونے کی وجہ سے کمپنی پہلے سال میں کافی ایشوز کا شکار ہوئی۔ اسی وقت کارل کی ملاقات برتھا رینیئر سے ہوئی جو بعد میں اس کی وائف بنی۔ اچھے فائنینشل بیک گراؤنڈ کے باوجود برتھا نے کارل کے ویژن میں اس کو پورا سپورٹ کیا اور اس کی طاقت بن گئی۔ کارل کے بزنس پارٹنر کے ان ریلائبل ہونے کی وجہ سے برتھا نے اپنی ڈوری کا استعمال کر کے ریٹر کا پورا شیئر خرید لیا، جس سے کارل اور برتھا نے کمپنی کا کمپلیٹ کنٹرول لے لیا۔ دونوں نے مل کر مشکلات کے باوجود بزنس کو سنبھالا اور اگلے 10 سال میں کافی امپرومنٹس لائیں۔ اسی دوران کارل نے اپنی جینیس کا ثبوت دیا اور 1879 میں ایک گیسولین 2 اسٹروک انجن ڈیولپ کرتے ہوئے اپنی انوینشنز پیٹنٹ کرنا شروع کی، جیسے انجن سپیڈ ریگولیشن سسٹم، بیٹری اگنیشن سسٹم، سپارک پلگ، کربوریٹر، کلچ، گیئر شفٹ اور واٹر ریڈیٹر۔ ان انوینشنز کی وجہ سے کارل اپنے ہارس لیس کیریج کے ڈریم کے اور قریب آ گئے اور بزنس کے لیے نئے پروڈکٹس بنانے لگے، لیکن پروڈکشن کاسٹ کے بڑھنے کی وجہ سے بینکس نے کمپنی کو آفیشیلی رجسٹر کرنے کا کہا۔ اس وجہ سے کارل کو نئے انویسٹرز کے ساتھ ملنا پڑا اور 1882 میں کمپنی ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی بن گئی۔ آخر کار کارل کے پاس اپنی کمپنی کے صرف 5% شیئرز بچے اور ان کی پوزیشن اور نیچے ہو گئی۔ ان کے آئیڈیاز کو اب کمپنی میں نہیں لیا جا رہا تھا اور وہ کمپنی کے کسی بھی فیصلے میں شامل نہیں تھے۔ اس سے گھبرا کر کارل نے کمپنی چھوڑ دی۔ یہ فیصلہ ان کے لیے مشکل تھا، مگر اس نا امیدی نے ان کا حوصلہ اور بڑھایا۔ بائی سائیکلز کا شوق انہیں میکس روز اور فریڈرک ولہم تک لے گیا، جو ایک بائی سائیکل ریپیئر شاپ چلا رہے تھے، جنہوں نے مل کر بینز اینڈ
शुरू की। जल्द ही ये कंपनी इंडस्ट्रियल मशीन्स और गैस इंजन्स बनाने लगी और कामयाब हो गई। अब स्टेडी इनकम और 25 लोगों की टीम के साथ कार्ल ने अपनी कार बनाने पर काम शुरू किया। उन्होंने गैस इंजन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एक मोटर वाली कैरेज डिजाइन की। 1885 में उन्होंने दुनिया की पहली ऑटोमोबाइल बेंज पेटेंट मोटर वैगन तैयार की। ये 2 सीटर व्हीकल 3 वायर व्हील्स पर चलती थी और गैसोलीन 4 स्ट्रोक इंजन से पावर्ड थी। इसका इंजन 2/3 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और 7 माइल पर आवर तक चल सकता था। कार्ल को पता था कि ये इन्वेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। 1886 के समर में उन्होंने अपनी कार पब्लिक के सामने लाई, लेकिन लोगों के रिव्यूज कुछ अच्छे नहीं थे। कुछ लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन ज्यादातर लोग स्केप्टिकल थे और कुछ लोगों को डर था कि ये व्हीकल एक्सप्लोड कर सकती है। कार्ल के बिजनेस पार्टनर्स भी इस इन्वेंशन से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि ये मशीन ज्यादा फायदा नहीं दे सकती, लेकिन कार्ल अपने विजन पर यकीन रखता था। 1888 में उन्होंने कार्स बनाना शुरू की और दुनिया का पहला कार मैन्युफैक्चरर बन गया। उनकी वाइफ, जो उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी, हमेशा उनके साथ थी और नए आइडियाज देती थी। लोगों ने इम्प्रूवमेंट्स के बावजूद भी इस इन्वेंशन को पूरी तरह नहीं समझा। कार्स बहुत महंगी थी और सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर पाते थे, लेकिन कार्ल को यकीन था कि ऑटोमोबाइल का वक्त आ गया है। 1888 में एक सुबह बर्था बेंज अपने शोहर कार्ल के सोते हुए उनकी कार लेकर निकल पड़ी अपने दोनों बेटों के साथ। उन्होंने मानहाइम से 66 माइल दूर फोर्सहाइम में अपनी माँ से मिलने का इरादा किया। न कार्ल को इन्फॉर्म किया न पुलिस को, क्योंकि वो शायद मना कर देते। उस वक्त किसी ने इतना लंबा सफर किसी मोटराइज्ड व्हीकल पर नहीं किया था, लेकिन बिरथा अपने शोहर की इन्वेंशन को साबित करना चाहती थी। सफर आसान नहीं था। डस्टी रोड्स, फ्यूल की कमी और कार के इश्यूज का सामना करते हुए बिरथा ने सब कुछ खुद संभाला। 12 घंटे लगातार सफर करने के बाद बिरथा फोर्सहाइम सेफली पहुंच गई। इस सफर ने न सिर्फ बिरथा की हिम्मत दिखाई, बल्कि दुनिया को ऑटोमोबाइल की अहमियत भी समझाई। बिरथा का मकसद था कि लोग समझें कि ऑटोमोबाइल एक नई और जरूरी इन्वेंशन है। इस सफर की वजह से बेंज मोटर वैगन को लोगों की तवज्जो मिली और कार्ल के बिजनेस को अच्छी पब्लिसिटी मिली। तब बेंज एंड सी ने अपना काम बढ़ाया और 1890 तक जर्मनी का दूसरा बड़ा इंजन मैन्युफैक्चरर बन गया। लेकिन ये कार्स की सेल्स नहीं, बल्कि स्टेशनरी गैसोलीन इंजन्स की वजह से हुआ। न्यू पार्टनर्स फ्रेडरिक वॉन फिशर और जूलियस गैंस दोनों ने बिजनेस और मार्केटिंग संभाल ली, जिससे कार्ल अपनी इंजीनियरिंग पर ध्यान दे सके। उन्होंने प्लैनेटरी गियर ट्रांसमिशन, डबल पिवट स्टीयरिंग और फ्लैट इंजन डिजाइन जैसे इनोवेशंस किए। 1893 में बेंज विक्टोरिया इंट्रोड्यूस हुई, जो एक लग्जूरियस 2 सीटर थी, जो 3 हॉर्स पावर इंजन के साथ 11 माइल पर आवर तक जा सकती थी। इसकी रिलायबिलिटी ने अच्छी सेल्स दी, लेकिन सक्सेस इकोनॉमिकल और प्रैक्टिकल बेंज वेलो ने हासिल की। इस मॉडल की 1200 यूनिट्स बनी, जो दुनिया की पहली लार्ज स्केल प्रोडक्शन कार थी और बेंज एंड सी को सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनाने में मदद मिली। लेकिन करीबी कंपेटिटर डाइमलर मोटर एंड गसेलशाफ्ट की वजह से नए चैलेंजेस सामने आए। गॉटलिब डाइमलर और विल्हेम मायबाच, जो टैलेंटेड इंजीनियर्स थे, इस कंपनी को लीड कर रहे थे। डाइमलर बिजनेस स्किल्स और कनेक्शंस में कार्ल बेंज से बेहतर था। 1892 में डाइमलर की पहली कमर्शियल कार लॉन्च हुई और 1894 में उनकी पहली 2 सिलेंडर कार आई और 1897 में पहला फ्रंट इंजन मॉडल डाइमलर फिनिक्स इंट्रोड्यूस हुआ। डाइमलर की गाड़ियां ज्यादा कंफर्टेबल लग रही थीं, जिससे बेंज के लिए कंपटीशन बढ़ गया। 1900 में गॉटलिब डाइमलर का इंतकाल हुआ और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मायबाच ने संभाल ली। उसने मर्सिडीज 35 हॉर्स पावर कार डिजाइन की, जो कंपनी की सबसे बड़ी कामयाबी बनी। 1901 में मर्सिडीज 35 हॉर्स पावर इंट्रोड्यूस हुई, जो मॉडर्न कार्स का पहला डिजाइन माना गया। इसका पावरफुल इंजन, वाइड बॉडी और स्पेशली डिजाइन स्टील चैसी इसे स्टेबल बनाता था। यह रेसिंग के लिए बनी थी और बिजनेसमैन इमिल जेलिनेक की रिक्वेस्ट पर डिजाइन हुई, जिन्होंने इसे अपनी बेटी मर्सिडीज का नाम दिया। ये कार मल्टीपल रेसेस जीती और 56 माइल पर आवर की टॉप स्पीड की वजह से अपने जमाने की सबसे सुपीरियर व्हीकल मानी गई। इसकी सक्सेस ने डाइमलर को बहुत अटेंशन दी, जिस वजह से उन्होंने सारी गाड़ियां मर्सिडीज के नाम से रीब्रांड कर दी और नए मॉडल्स लॉन्च किए। दूसरी तरफ कार्ल बेंज के पार्टनर्स नए ट्रेंड से परेशान हो गए। उन्होंने फ्रेंच डिजाइनर सायर कार के एक तेज गाड़ी बनानी शुरू की, कार्ल के अप्रूवल के बगैर। कार्ल बेंज अपने पार्टनर्स के फैसले से नाराज थे, क्योंकि उन्हें रेसिंग का शौक नहीं था। उनका मानना था कि गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए और तेज चलाना पसंद नहीं था।
और टीम की बनाई कार फेल हो गई, जिससे बेंज कंपनी 1903 से 1904 तक काफी मुश्किलात का शिकार हुई। आखिरकार कार्ल ने रेसिंग अलाउ की, जो उनकी कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। 1908 में बेंज ने 120 हॉर्स पावर रेसर लॉन्च की, जो सिर्फ 8 आवर्स में लेनिनग्राड से मॉस्को पहुंची, और 1909 में 200 हॉर्स पावर ब्लेड्स एंड बेंज कार ने 140 माइल पर आवर तक जाकर उस जमाने की सबसे तेज व्हीकल बन गई। 1911 तक बेंज और डाइमलर की गाड़ियां दुनिया की टॉप कार्स बन चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड वार 1 और जर्मनी की इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से दोनों कंपनीज मुश्किलात में आ गईं। सर्वाइवल के लिए 1924 में उन्होंने प्रोडक्शन और मार्केटिंग कंबाइन की और 1926 में पूरी तरह मर्ज करके डाइमलर बेंज बना, और फिर मर्सिडीज बेंज के नाम से नए मॉडल्स लॉन्च हुए, जिनमें मर्सिडीज टाइप 630, मॉडल एस, एसएस और एसएसके शामिल थे। इन डिजाइन्स में फर्डिनेंड पोर्शा ने बहुत अहम किरदार अदा किया। कार्ल बेंज ने अपनी कार्स की सक्सेस देखी और 1929 में 84 इयर्स की एज में वफात पा गए। उनके बाद डाइमलर बेंज ने अपनी ग्रोथ जारी रखी। 1933 में हिटलर ने जर्मन इंजीनियरिंग को प्रमोट करने के लिए डाइमलर बेंज को ग्रैंड प्री रेसेस के लिए सब्सिडी दी। 1934 से 1939 तक मर्सिडीज बेंज ने W25 और W125 मॉडल्स के साथ 200 माइल पर आवर तक की स्पीड पर ग्रैंड प्री रेसेस डोमिनेट की, जिनका मुकाबला ऑटो यूनियन से होता रहा, जिसने 1935 से 1937 तक 25 रेसेस जीती। ये सक्सेसेस जर्मनी को मोटर स्पोर्ट्स में टॉप पर ले गईं और मर्सिडीज बेंज हिटलर का पसंदीदा ब्रांड बन गया। 1939 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान डाइमलर बेंज ने सिविलियन कार्स बंद करके मिलिट्री व्हीकल्स, टैंक्स और एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाने शुरू किए, और 1942 तक सारे रिसोर्सेज वार एफर्ट के लिए यूज हुए, और फ्रंटलाइन स्टाफ कम होने की वजह से वुमेन को हायर किया गया प्रोडक्शन डिमांड्स पूरा करने के लिए। डाइमलर बेंज ने वर्ल्ड वार के दौरान फोर्स लेबर का सहारा लिया, जिसमें कैदियों को फैक्ट्रीज में मजबूर किया गया। वार के बाद जर्मन एसेट्स कॉन्फिस्केट हुए, लेकिन कंपनी ने दोबारा रीबिल्ड करके 1947 तक पैसेंजर व्हीकल्स बनाना शुरू कर दी। 1950s तक उनका कमबैक जबरदस्त था और 1954 में प्रॉफिट $1 बिलियन से ज्यादा हो गया। आज मर्सिडीज बेंज दुनिया की टॉप कार ब्रांड्स में से एक है, और ये सब कार्ल बेंज की डेडिकेशन की वजह से मुमकिन हुआ, जो अपनी हम्बल शुरुआत और चैलेंजेस के बावजूद अपने ड्रीम को हकीकत में बदलने के लिए कमिटेड रहे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।